Good morning to my dear students. Students, today we are going to discuss about plant tissues and especially we are going to discuss about complex permanent plant tissues. Since we discussed a lot about the tissues in case of the plants, we discussed about meristematic tissue, then we discussed about simple permanent tissues. Later on, we discussed about some protective tissues. Today, I want to discuss the most important tissues in the plants, and these are complex permanent tissues. Actually, what are complex permanent tissues? I want to differentiate them from the simple permanent tissues, since we know that the simple permanent tissues are made up of similar kind of cells. But here in the case of the complex permanent tissues, you will observe that these are made up of more than one type of cells. Means they are made up of different types of cells that have a common origin and work together to do a common function. यानी ये वो टिश्यू हैं जो अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है, जिनका ओरिजिन तो सेम है एंड इनका फंक्शन भी सेम है, बट जो इनका स्ट्रक्चर होता है काफ़ी डिफरेंट होता है. इज इट क्लियर? नाउ दीज आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, ठीक है. Means I have to say that these tissues, which tissues, complex permanent tissues are present in complex plants. Now what are complex plants? Later on in the next chapters we will discuss about the classification of plants. In simplest plants like Thallophyta, Bryophyta or in Pteridophyta, these are not present. Okay, these are present in these are not present in Thallophyta and Bryophyta, and from Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm are the categories of the plants where these are present. Okay. Now what is their function? The complex permanent tissues are basically responsible for the transportation of mineral, water, food to the various parts of the body. Now I want to explain one thing, that what is the role of these complex permanent tissues, but you have to wait little bit. Okay, while I will discuss in detail, then I will tell you the example, and it's a very good example to remember all these things. Okay. Now we have to study about two types of complex permanent tissues, xylem and phloem. Okay. And combinedly these tissues, xylem and phloem, these are combinedly called as uh, vascular bundles. Okay. Now in plants there are two types of complex permanent tissues which are made up of different types of cells. Okay. And their function is transportation of water, transportation of minerals, transportation of food to the various parts of the plant body. Now I told you that the complex permanent tissues are of two different types, xylem and phloem. XYLEM it's xylem, PHLOEM it's phloem. Okay. Now their function or their role is quite different. Now I want to tell you that what is their function. uh, Plant needs water as well as a mineral for the preparation of the food. Okay. And the mineral and the water is absorbed by roots through soil. Okay. And now from roots, this water or these minerals must have to be reached from roots to leaves. Okay. So xylem is the tissue which is responsible for the transportation of this mineral and water from roots to the leaves. While when the water is reaching into the leaves or minerals are going there in the leaves are producing food or they are synthesizing food, and whenever the leaves are synthesizing or producing food, this food must have to be transported to the various part. अब लीव्स ने फूड को बनाया तो लीव से बने हुए फूड की रिक्वायरमेंट रूट को भी है, स्टेम को भी है, ब्रांचेस को भी है, फ्रूट्स को भी है, फ्लावर्स को भी है. यानी यहाँ से फ्लोएम का फंक्शन शुरू होता है. यानी फ्लोएम क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो इस तरह से हमने देखा जाइलम का काम क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी रूट से लेकर के लीफ तक का वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना. ठीक है. वहीं तो हम कह सकते हैं इट्स अ यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि नीचे से ऊपर ही चढ़ना है केवल. वहीं जो लीव्स में जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है, सिंथेसाइज फूड इज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. तो मल्टी डायरेक्शन में यहाँ पर जो सिंथेसाइज फूड है इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम, जिसको कि ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं. नाउ इन दोनों के फंक्शन को और इजीली अगर मैं समझाने के कहा, मैंने आपसे कहा था कि आई विल लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन. ठीक है. सपोज आपको घर में चिकन बनाना है. ठीक है. एंड यू आर 4 मेम्बर्स इन योर फैमिली. ठीक है. तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू द मार्केट एंड यू आर बाइंग चिकन एंड यू आर कैरिंग बैक इट टू द होम. तो आपने चिकन खरीदा, चिकन घर लेकर के घर पे आए. ना मम्मी को दे दिया. ना मम्मी इज़ एक्टिंग लाइक अ
लीफ, और तो वो क्या करेंगी, चिकन को सिंथेसाइज करेंगी। तो मम्मी का काम था चिकन को सिंथेसाइज करना, ठीक है, यानी चिकन को सिंथेसाइज करना मतलब चिकन को कुक करना, ठीक है। देन चिकन तैयार हो गया, देन यूर सिस्टर इज़ देयर, तो आपकी सिस्टर क्या करती है, उस चिकन को फैमिली के सारे मेम्बर्स को बांटती है, ठीक है। तो यानी आप देखिए, आपने किसका काम किया, आपने जाइलम का काम किया, आपने मम्मी यानी लीफ तक क्या पहुंचा दिया, चिकन पहुंचा दिया, मम्मी ने कुक कर दिया, और आपकी सिस्टर ने किसका काम किया, फ्लोएम का काम किया, ठीक है। सो दिस इज द रूल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, अपलिफ्टमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स टुवर्ड्स द लीव्स, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सिंथेसाइज फूड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ मैंने पहले ही कहा था कि जाइलम एंड फ्लोएम आर complex permanent tissue. Why these are complex permanent tissues? Because these are made up of different types of cells. So if initially we will observe that xylem is made up of 4 type of cells: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma, ठीक है। now xylem is made up of 4 types of cells: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma, while phloem are made up of ऑल्सो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स: सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स। तो देखिए ट्रैकिड और वेसल की जगह इसमें क्या है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है। बाकी जैसे उसमें जाइलम पेरेन्काइमा था, इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा है। उसमें जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जो था, इसको हम जाइलम फाइबर भी बोलते हैं, यहाँ पे हम फ्लोएम फाइबर भी बोलते हैं। और आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट जाइलम और फ्लोएम आर कंबाइंडली नोन एज वास्कुलर बंडल्स। यहाँ लिखा है X+P=VB, इसका मतलब होता है जाइलम एक वास्कुलर टिश्यू है, फ्लोएम एक वास्कुलर टिश्यू है, एंड इन combinedly these are called as vascular bundles. Now in detail, if you will observe that there are some common features of xylem. Xylem cells have thick wall. The elements of tracheids, vessels, parenchyma and xylem sclerenchyma, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 एलिमेंट जो हैं आपको याद रखने हैं, ट्रैकेट्स हैं, वेसल हैं, जाइलम पेरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर आप याद रखिए इंस्टीड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। वेसल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड आर शॉर्ट एंड वाइडर देन द ट्रैकिड्स। तो बेसिकली ट्रैकिड एंड वेसल्स, इन दोनों का ही काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं, क्योंकि ये सीधे एक पाइपलाइन, एक चैनल के थ्रू बना देते हैं। और इसमें से भी वेसल जो है वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वेसल्स एंड ट्रैकिड्स हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली एफिशिएंटली, यानी ज़मीन में नीचे से ऊपर की ओर एक पाइपलाइन सिंथेसाइज करते हैं, जिसमें होकर के पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक है। वहीं जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन द लेटरल कंडक्शन ऑफ द वाटर। तो जाइलम पेरेन्काइमा क्या काम करता है, जाइलम पेरेन्काइमा जो है, जो भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है उस फूड को स्टोर करके रखता है। और इसके अलावा रेडियल डायरेक्शन में दाएं बाएं अगर कहीं वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होना है तो वो जाइलम पेरेन्काइमा के थ्रू होता है, ठीक है। और वहीं जाइलम फाइबर्स जो हैं, जिनको कि जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी बोलते हैं, एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन, इनका ये क्योंकि फाइबर है, स्क्लेरेन्काइमा है, डेड सेल्स होंगे, तो दीज विल सपोर्ट इन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का प्रोवाइड करेंगे। इज इट क्लियर। सो आउट ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स, जाइलम में 4 एलिमेंट्स हैं, यानी 4 टाइप्स की सेल हैं, वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, जाइलम पेरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर्स हैं। इनमें से 3 जो हैं डेड सेल हैं। कौन कौन, आपकी जो ट्रैकिड्स हैं डेड सेल हैं, वेसल जो हैं डेड सेल हैं, और जाइलम फाइबर या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा जो है डेड सेल हैं। केवल एक टाइप की सेल जो है वो लिविंग है, और वो लिविंग सेल कौन है, वो है जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। वहीं फ्लोएम जो है, फ्लोएम को बास्ट कहते हैं, निकनेम फ्लोएम का बास्ट है, और जाइलम का निकनेम वुड है, ठीक है। जाइलम को वास्ट भी कहते हैं। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट: सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। सीव ट्यूब्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। सीव ट्यूब जो है, ट्यूब से समझ में आ रहा है कि दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। द एंड जहाँ पर ये ट्यूब्स होती हैं, सीव ट्यूब्स जो होती हैं, जो इनके एंड पॉइंट होते हैं, यानी ट्यूब है लंबी सी, जहाँ पे उसके एंड पॉइंट होंगे वो टैपर्ड होंगे। टैपर्ड मतलब वहाँ पे सीव की तरह, छन्नी की तरह छेद होंगे, ठीक है। द एंड वॉल्स ऑफ आर कॉल्ड सीव प्लेट्स एंड आर परफोरेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर्स। तो इसकी जो एंड वॉल होती है यहाँ पर, वहाँ पर परफोरेशन होता है, छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज सीव प्लेट्स। द एंड The end walls are called sieve plates and are perforated due to the presence of the pores. Phloem transporter. Now what is the function of phloem? Phloem का काम क्या है, जो लीफ ने फूड को सिंथेसाइज किया है तो ये प्लांट के डिफरेंट ग्रोइंग रीजन तक पहुंचाने का काम करता है इस फूड को, यानी फूड सिंथेसाइज फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन एंड फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन्स टू ग्रोइंग रीजन्स, हेंस मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन इट। तो इसका मतलब है इससे दोनों डायरेक्शन में मटेरियल्स का क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ठीक है। नाउ लास्ट आई वांट टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। कंडक्ट्स, जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है, फ्लोएम जो है कंडक्ट्स द फूड। दूसरा डिफरेंस, कंडक्शन टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन इन केस ऑफ द जाइलम,
while in case of the phloem conduction occurs in two direction, upward, downward, in any direction the conduction can be occur. कंडक्टिंग चैनल्स आर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो आपने देखा था जाइलम में जो कंडक्टिंग चैनल हैं यानी पाइप लाइन्स हैं वो कौन कौन है, वेसल और ट्रैकिड है। वहीं फ्लोएम में कौन कौन होते हैं, सीव ट्यूब। और सीव ट्यूब जनरली क्या होती है, इनको असिस्ट करने वाली, जैसे कंपेनियन का मतलब क्या होता है, दोस्त। तो इनकी जो कंपेनियन सेल हैं दूसरी वाली, कंपेनियन सेल्स आर गाइडिंग सीव ट्यूब्स। अब एक चीज़ और मैं बताऊँ, सीव ट्यूब्स जो है इनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, अपना कंट्रोल खुद के ऊपर नहीं होता, तो इनको कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन सेल्स करती हैं। ठीक है। अब तीसरी डिफरेंस, ओनली वन सेल इज लिविंग इन केस ऑफ द जाइलम एंड दिस लिविंग सेल इज जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है। रेस्ट ऑफ थ्री सेल्स जाइलम फाइबर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर डेड, वाइल इन केस ऑफ द फ्लोएम थ्री सेल्स आर लिविंग बट वन इज डेड। उल्टा है देखिए। तो फ्लोएम में आपकी सीव ट्यूब लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है और फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है। केवल डेड सेल कौन होती हैं, फ्लोएम फाइबर्स, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। Xylem conducts and gives mechanical strength also due to the presence of lignified vessels। तो xylem मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी एडिशनली प्रोवाइड करता है। वहीं फ्लोएम कंडक्ट्स केवल कंडक्शन का काम करता है, फूड के गिव्स नो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर? So I think the concept is clear. There is a diagram, you can, in the diagram you can easily observe how the transportation takes place with the help of the xylem and phloem. I think for today this is enough. Revise it yourself. If you feel any difficulty, you can ask right now. Thank you and bye bye.